Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss 20 MCQ questions on administration and finance. It is series 1. From different rules, actually, you can get question. According to the demand of some aspirants, just I said these 20 MCQ questions, and easily you can revise it. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. And it is series 1. In this series, I will discuss 20 MCQ questions with explanation. My friends, my WhatsApp number, it is 8327782034. If any doubt is there, you can consult with me. Also, you can join my Telegram channel. Link is there, t.me/BAPI2034. You can join my channel and you can get notification for my upcoming videos. Next one, please follow my Facebook page. It is Asit Government Rule Guru. You follow my Facebook page so that you can get video link in systematic manner. So you can easily find video, and you can find video link related to the different rules. So please follow my Facebook page Asit Government Rule Guru, and also please subscribe my channel Asit Government Rule Guru. Share my channel, like my channel, so that you can get notification. Definitely you get immense benefit from my videos. So now I am going to start 20 MCQ questions. It is series 1. Question number 1. The public account of India referred to in dash of the constitution. Different articles given: article 266 subsection 2, article 267 subsection 1, article 268 subsection 1, article 269 subsection 1. So 4 articles given. So public account of India referred to in dash of the constitution, it is article 266 subsection 2. Right? Answer is answer is bit A. Okay, first bit is the answer. You see the explanation, it is clearly given. So 3 different funds of Government of India. One is the Consolidated Fund of India. Okay, it is article 266 subsection 1. Then Contingency Fund of India, it is article 267, right? And article 266 subsection 2, Public Accounts of India. So related to article 266 subsection 2, question is asking related to the Public Accounts of India. So you remember two very important one, Consolidated Fund of India, article 266 subsection 1, and Public Accounts of India, article 266 subsection 2. And if you see the article 267, it is Contingency Fund of India. Just I will give the brief clarification about these 3 funds. You see, first one, it is Consolidated Fund of India, article 266 subsection 1. You know that it means basically central government employees, they are getting salary from Consolidated Fund of India, and similarly in state government also, state government employees, they are getting salary from State Consolidated Fund of India. So what type of funds actually included in Consolidated Fund of India, I will discuss. This is the most important of all accounts of the government. This fund is filled by direct and indirect taxes. Okay, direct taxes, you know, income tax and corporation tax. The tax imposed on the income of the people, direct tax. Indirect taxes, you know, GST. The tax imposed by the government on goods and services, right? Loans taken by the Indian government. India government, suppose borrow from International Monetary Fund, World Bank, from any other foreign government, right? So these things also filled by the Consolidated Fund of India. Returning of loans or interest of loans to the government by anyone or agency that has taken it. Okay, so from one thing you remember, जो भी गवर्नमेंट लोन लेता है इसी फंड में इंक्लूड होता है, और जब हम फंड को रीपेमेंट करेंगे
विथ इंटरेस्ट इसी फंड से ही वो जाएगा। ठीक है, जब लोन लेंगे वो उसमें इसी फंड में आएगा, जब हम लोन रीपेमेंट करेंगे इसी फंड से ही हम रीपेमेंट करेंगे विथ इंटरेस्ट। Similarly, you know that central government also providing loan to the state governments, to the union territories, right? So कि any to the foreign governments, तो इसी फंड से वो देता है। ठीक है, और उनसे जो रिटर्न इट मीन्स दे पे बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे पे बैक द लोन अमाउंट। लोन अमाउंट मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे बोरोड प्लस इंटरेस्ट, तो इसी फंड में इंक्लूड होता है। तो आपको याद रखना है जो गवर्नमेंट लोन लेता है, ठीक है, तो इसी फंड में आ जाता है, और हम जब रीपेमेंट करते हैं विथ इंटरेस्ट इसी फंड से ही एक्सपेंस होता है। सिमिलरली जब हम लोन, जो गवर्नमेंट जब लोन देता है इसी फंड से लोन देता है, और फिर जब वो पे करते हैं वो इसी फंड में इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट मीट्स ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड। मैं अभी बताया था, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है द गवर्नमेंट जो मीट करता है इसी से करता है। आपको वेरी कॉमन थिंग है, जो हमको सैलरी मिलता है बेसिकली एमोलुमेंट्स मिलता है इसी फंड से मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दे आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। द गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंटरी अप्रूवल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड। ये फंड से मनी विथड्रॉ करने के लिए तो बेसिकली अप्रूवल चाहिए। ओके, बट पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, सो 2/3 मेंबर्स अप्रूव करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट में 2/3 मेंबर्स अप्रूव करेंगे, तब बेसिकली गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। ये आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। आर्टिकल को रिमेंबर करना है, क्लियर। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ईच स्टेट ऑल्सो, ईच स्टेट का भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट जैसे है। ठीक है, सिमिलर प्रोविजंस, और इसका एक ऑडिट होता है, तो सीएजी उसका ऑडिट करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट्स दीज फंड्स एंड रिपोर्ट्स टू द रिलेवेंट लेजिस्लेचर्स ऑन देयर मैनेजमेंट। यू रिमेंबर सीएजी, सो उसका जो ऑडिट होता है फंड का सीएजी करता है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंड है जो आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 में है। अभी चलेंगे नेक्स्ट वन, जो कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। बेसिकली इमरजेंसी में जो फंड से मनी विथड्रॉ होता है वही है कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। प्रोविजन ऑफ दिस फंड इज मेड इन आर्टिकल 267(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आर्टिकल 267 सबसेक्शन 1 इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर्टिकल 267 सबसेक्शन 2 मीन्स फॉर स्टेट। इट्स कॉर्पस इज ₹500 crores, यू रिमेंबर। सो इम्प्रेस्ड, एक इमरजेंसी केस में एक्चुअली स्पेसिफिक पर्पज में ये फंड को यूज किया जाता है, इसलिए इमरजेंसी, इम्प्रेस्ड मीन्स इमरजेंसी केस में। ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पज में यूज होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ये फंड को कौन होल्ड करता है। द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिमेंबर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड्स दिस फंड ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। दिस फंड इज, और एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, दिस फंड इज यूज्ड टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। मैं बताया था स्पेसिफिक पर्पज, इमरजेंसी सिचुएशन में इसी फंड से एक्सपेंडिचर होता है। तो जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर जो हम प्रेडिक्ट नहीं किया है वो एक्सपेंडिचर होता है, तब इसी फंड से होता है। ठीक है, और हम जब स्टेट का कंटिंजेंसी फंड को आ जाएंगे वो आर्टिकल 267 सबसेक्शन 2 है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल को रिमेंबर करना है, और ये जो इम्प्रेस्ड, और ये फंड को कौन होल्ड किया है और किस टाइम में फंड को यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। जो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है आर्टिकल 266 सबसेक्शन 2 में है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो फंड आता है उसको छोड़कर, ठीक है, ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन दोज कवर्ड अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ऑलरेडी वी हैव गेन्ड नॉलेज कि इट मीन्स फ्रॉम व्हिच सोर्स एक्चुअली फंड इज कमिंग टू फिल द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो है वो जो पब्लिक मनी आता है वो पब्लिक अकाउंट्स में आता है।
ठीक है। तो रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट और फंड। जो भी कंसोलिडेटेड फंड में था, तो जैसे मैं बताया था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस की लोन, कि गवर्नमेंट लोन दिया है और वो जब पेमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो ये सब कंसोलिडेटेड फंड में आता है। तो बाकी जो है पब्लिक मनी वो सब पब्लिक अकाउंट्स में आता है। तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो पब्लिक अकाउंट्स है उसको फिल करता है बैंक सेविंग अकाउंट ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, वो यही पब्लिक अकाउंट में इंक्लूड है। नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, डिफेंस फंड, ये सब इसी में आता है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड में आता है। एक है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, मनी अर्न फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। आप डिसइन्वेस्टमेंट जानते हो, गवर्नमेंट सेल पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड PSUs, ओके, टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जब सिलेक्टेड PSU गवर्नमेंट डिटेक्ट करता है कि ये जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसमें लॉस है, तो कुछ सिलेक्टेड PSU का चाहे पार्ट हो कि होल हो, वो शेयर को बेच देता है, ठीक है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, और जो मनी जनरेट होता है उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं वही बताया, इट मीन्स गवर्नमेंट गेटिंग फंड थ्रू सेलिंग पार्ट और होल ऑफ द शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड PSUs टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये भी आता है पब्लिक अकाउंट्स में आता है। और बाकी जो नेशनल कैलामिटी एंड कॉन्टिजेंसी फंड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इसी में आता है। जैसे प्रोविडेंट फंड है, पोस्टल इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये सिमिलर फंड्स, ये भी पब्लिक अकाउंट्स में आता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि द गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांसेस फ्रॉम दिस अकाउंट। ये अकाउंट से यदि गवर्नमेंट एडवांस लेना चाहता है तो इसमें परमिशन जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को परमिशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मगर कंसोलिडेटेड फंड में था, यदि मनी विथड्रॉ करोगे तो वहां पर पार्लियामेंटरी परमिशन चाहिए, तो 2/3 मेंबर्स उसको अप्रूव करना चाहिए यदि गवर्नमेंट चाहता है कि कंसोलिडेटेड फंड से मनी विथड्रॉ करेगा। मगर इससे ये जो पब्लिक अकाउंट फंड है, इससे गवर्नमेंट एडवांस लेता है तो परमिशन का जरूरत नहीं है। सो सभी स्टेट का भी ये फंड है, पब्लिक अकाउंट फंड है, और इसको भी जो ऑडिट होता है वो CAG करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। CAG इसको भी ऑडिट करता है। जैसे CAG ऑडिट करता था कंसोलिडेटेड फंड को, वैसे ही ये पब्लिक अकाउंट को भी CAG ऑडिट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड था 3 टाइप ऑफ फंड्स को, मैं थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे। सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स अप्लाई टू। आप जानते हो कि CCS मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 है कि, तो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? इसमें 4 ऑप्शंस है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स डेपुटेशन अब्रोड, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रेलवे एम्प्लॉइज ऑन डेपुटेशन टू एन ऑफिस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड डिफेंस सर्विसेज पर्सोनल। तो आप देखिए, जो डेपुटेशन अब्रोड में ये CCS MA रूल्स 1944 एप्लीकेबल नहीं होगा, उनका जो मेडिकल रूल्स है अलग होगा। अब्रोड में यदि डेपुटेशन में आपको कोई फॉरेन कंट्री को भेजा जाता है, ये मेडिकल अटेंडेंस रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। रेलवे एम्प्लॉइज ऑन डेपुटेशन टू एन ऑफिस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए कोई रेलवे एम्प्लॉय वो डेपुटेशन में जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो डेपुटेशन में जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये एप्लीकेबल होगा, ये रूल एप्लीकेबल होगा। डिफेंस सर्विसेज पर्सोनल उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है, रेलवे एम्प्लॉइज है कि डिफेंस है, उनका जो मेडिकल अटेंडेंस रूल्स अलग है। मगर एक चीज आपको याद रखना है, यदि रेलवे एम्प्लॉय वो डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, कि कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, तब ये मेडिकल अटेंडेंस रूल्स को वो अवेल करेंगे। और जनरली डिफेंस सर्विसेज, रेलवे, ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। यदि डेपुटेशन में हम अब्रोड भेजते हैं, कोई फॉरेन कंट्रीज को भेजा जाता है डेपुटेशन में कोई एम्प्लॉय को, उसके लिए रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको आंसर मिल गया। तो आंसर जो है बीट C है, थर्ड बीट एक्चुअली आंसर है, ठीक है। जो रेलवे एम्प्लॉय है वो यदि वो डेपुटेशन, एक्चुअली जनरली रेलवे का जो
मेडिकल अटेंडेंस रूल्स अलग है, ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज का, ठीक है। मगर कोई रेलवे एम्प्लॉय यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डेपुटेशन में जाता है टेम्पोररी पीरियड के लिए, उसको वो टेम्पोररी पीरियड में वो CCSMA रूल्स 1944 उसके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन हम देखेंगे, इसमें क्लियरली दिया है, देखिए रूल 1 देखिए, CSMA रूल्स 1944 अप्लाई टू, रूल 1 में क्लियरली है, आप CCSMA रूल्स 1944 देखेंगे, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स when they are on duty, leave including leave preparatory to retirement and terminal leave or foreign service in India or when under suspension, ये सभी केस में CCSMA रूल्स एप्लीकेबल होगा। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी में है, लीव में है, इंक्लूडिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, आप जानते हो जस्ट रिटायरमेंट के पहले मैक्सिमम 300 डेज आप इट मींस लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट ले सकते हो। यदि आप फॉरेन सर्विस में चले गए तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो वही क्लियरली दिया है, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स व्हेन दे आर ऑन ड्यूटी, लीव, ओके, और फॉरेन सर्विस इन इंडिया और व्हेन अंडर सस्पेंशन, ये CCSMA रूल्स एप्लीकेबल होगा, रहेगा, ठीक है। यदि रेलवे एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं, ठीक है, डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं, तब ये रूल को वो उनके लिए एप्लीकेबल होगा। कोई गवर्नमेंट पेंशनर वो रिटायर्ड हो चुका है, फिर उसका री एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट पेंशनर्स आर री एम्प्लॉयड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए एप्लीकेबल होगा। प्रोबेशनर्स प्रोबेशन पीरियड में है, एप्लीकेबल होगा। और कोई अप्रेंटाइसेस है, वो ट्रेनिंग ले रहा है और ट्रेनिंग के बाद ऑटोमेटिकली उसका अपॉइंटमेंट परमानेंट हो जाएगा, उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये जो है सब एप्लीकेबिलिटी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट चलेंगे, ये थोड़ा आप देख लीजिए, और नेक्स्ट आप देखिए, दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। डेपुटेशन अब्रोड, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इनके लिए डिफरेंट है। और इसमें ऐड कर दीजिए जो रेलवे एम्प्लॉइज है, उनका भी जो मेडिकल अटेंडेंस रूल्स अलग है, ओके, डिफेंस पर्सनल्स का अलग है। आप अब्रोड में, यदि इंडिया, विद इन इंडिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन इंडिया आप डेपुटेशन में चले गए तो होगा, मगर यदि अब्रोड में चले गए वो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। तो मेरा CSMA रूल्स 1944 मेरा तो ऐसे वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। दिल्ली अलाउंस इज पेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डैश डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। तो जो दिल्ली अलाउंस मिलेगा वो मैक्सिमम कितना दिन के लिए मिलेगा, वही क्वेश्चन है। यदि आप हेडक्वार्टर से एब्सेंट होते हो, कब एब्सेंट होते हो, जब आप ट्रेनिंग में चले गए, टूर में चले गए, वो ट्रेनिंग, ये देखिए ये सब केस में ना ट्रेनिंग टूर में आपका जो ट्रांसफर होता है वो टेम्पोररी होता है, नहीं कि आप एक न्यू हेडक्वार्टर में जाते हो, वहां पर ट्रेनिंग लेते हो, कि वहां पर टूर में आप चले गए, वो सब टेम्पोररी ट्रांसफर है। तो ये जो डीए मिलेगा, आप देखिए जो ऑप्शन है 30 डेज, 75 डेज, 60 डेज, 180 डेज, एक्चुअली अप टू 180 डेज मिलेगा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज। उसके बाद आपको दिल्ली अलाउंस नहीं मिलेगा। तो टेम्पोररी ट्रांसफर बेसिकली अप टू 180 डेज, आप याद रखना है। जो टेम्पोररी ट्रांसफर है, ठीक है, टेम्पोररी ट्रांसफर है, इट इज अप टू 180 डेज। तो इतना मैक्सिमम, इतना दिन तक आपको दिल्ली अलाउंस मिलेगा, मगर उसके बाद आपको दिल्ली अलाउंस नहीं मिलेगा। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसका भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए, इसमें क्लियरली दे दिया, देखिए आप सप्लीमेंटर रूल 73 के, ये रूल पोजीशन को आप याद रखिए। सप्लीमेंटर रूल 73 में क्लियरली मेंशन है 180 डेज लिमिट। एन ऑफिशियल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी एट ए टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट will be paid DA for the first 180 days only. Beyond 180 days no DA will be admissible. मैं अभी बताया, यदि आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, टूर में जा रहे हो, वो टेम्पोररी ट्रांसफर है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोररी ट्रांसफर है, और अप टू 180 डेज आपको दिल्ली अलाउंस मिलेगा।
180 डेज, बियॉन्ड 180 डेज मीन्स वो आपको परमानेंट ट्रांसफर, ये मान लिया जाएगा कि ये परमानेंट ट्रांसफर है। अप टू 180 डेज टेम्पोररी ट्रांसफर है, बियॉन्ड 180 डेज हम मान लेते हैं कि ये परमानेंट ट्रांसफर है। तो आप ट्रेनिंग टूर में जा रहे हो तो अप टू 180 डेज वो टेम्पोररी ट्रांसफर है, तब तक आपको डीए मिलेगा, उसका बियॉन्ड में आपको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, टीए व्हेन डेप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग, एक ऑप्शन है आप ट्रेनिंग में चले गए, वहां पर आपको बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी मिल रहा है, सॉरी व्हेन बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज नॉट प्रोवाइडेड, वहां पर आपको बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, तो आपको फर्स्ट 180 डेज फुल डीए मिलेगा, उसके बाद तो नहीं है, बियॉन्ड 180 डेज नील है। ठीक है, यहां पर ये जो ऑप्शन है, यहां पर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट 180 डेज फुल डेली अलाउंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट एक ऑप्शन है वेयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज अवेलेबल, आप ट्रेनिंग में चले गए, वहां पर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज है, तो यहां पर क्या रूल है, फर्स्ट 30 डेज फुल डीए मिलेगा और नेक्स्ट 150 डेज हाफ डीए मिलेगा, और बियॉन्ड 180 डेज तो नहीं है। तो यहां पर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, ट्रेनिंग जो न्यू हेडक्वार्टर में आप ट्रेनिंग लेने के लिए गए ना, वहां पर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज है, तो फर्स्ट 30 डेज फुल डीए मिलेगा, नेक्स्ट 150 डेज हाफ डीए मिलेगा, बियॉन्ड 180 डेज नील, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। इफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड इज नॉट रिव्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, कैन इट बी वैलिड। तो आप जानते हो एक सस्पेंशन पीरियड जो होता है फर्स्ट 90 डेज होता है, तो 90 डेज के अंदर रिव्यू होना चाहिए, एक रिव्यू कमिटी बैठेगा, क्या आपका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं, वो डिसीजन होगा। यदि वो रिव्यू नहीं होगा तब ऑटोमेटिकली आपका जो सस्पेंशन पीरियड वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा। ठीक है, तो वही दिया है, इफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड इज नॉट रिव्यूड, आपका सस्पेंशन पीरियड रिव्यू नहीं हुआ विद इन 90 डेज, इससे पता चला कि वो आपका आप खत्म हो गया, वो अभी सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंशन नहीं होगा, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। कैन इट बी वैलिड, नो, वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 90 डेज जो फर्स्ट 90 डेज है उसके अंदर रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, रिव्यू कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा क्या आपका जो सस्पेंशन पीरियड है वो एक्सटेंशन होगा कि नहीं, और यदि आप जानते हो सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंशन होगा अब 6 मंथ्स तक होगा, ठीक है, हो सकता है, तो योर सस्पेंशन पीरियड इट मींस माइट बी एक्सटेंडेड अप टू 180 डेज, अप टू 6 मंथ्स, यू रिमेंबर। ठीक है, तो यहां पर यदि रिव्यू नहीं होता है तो वो सस्पेंशन पीरियड ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा और वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैड कमिटेड ए मिसकंडक्ट ड्यूरिंग हिज अर्लियर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम इन हिज पेरेंट एम्प्लॉयमेंट। सपोज आपको अभी एक गवर्नमेंट जॉब मिला, मगर गवर्नमेंट जॉब के पहले आप कुछ मिसकंडक्ट किए थे, उसका रिकॉर्ड है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होता है। सपोज आप कुछ मिसकंडक्ट किया था और उसके ऊपर आपका पुलिस रिकॉर्ड है, तो जो आपका प्रोबेशन पीरियड के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आप जब ज्वाइन करोगे तो पुलिस वेरिफिकेशन में आ जाएगा कि आपका कंडक्ट सही है कि नहीं। यदि पुलिस वेरिफिकेशन में डिटेक्ट होगा कि आपके नाम पे कोई एफआईआर है, कोई मिसकंडक्ट एक्टिविटी है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो जॉब है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेशन तो टेम्पररी होता है ना। तो वही, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैड कमिटेड मिसकंडक्ट ड्यूरिंग हिज अर्लियर एम्प्लॉयमेंट, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम इन हिज प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। यदि प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में पता चलता है कि बिफोर जॉब एक्चुअली यू डिड सम मिसकंडक्ट, ओके, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आप सर्विस के लिए क्या है, अनसुइटेबल होंगे। तो 4 ऑप्शंस में जो होगा देखिए, शुड बी वार्न, रेंडर हिम अनफिट and unsuitable for continual in service, salary should be withheld for a specific period, can be awarded penalty। तो ऑप्शन बी, यदि प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में डिटेक्ट हुआ कि बिफोर जॉब एक्चुअली यू डिड मिसकंडक्ट, और तो इमीडिएटली क्या होगा, आप जो प्रेजेंट जॉब में अनफिट रहेंगे, वो अनसुइटेबल रहेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो जॉब है वो कंटिन्यू नहीं होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। यहां पर दे दिया द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस फॉर द पीरियड ऑफ फर्स्ट 3 months ऑफ सस्पेंशन। तो आप जानते हो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस, आप फंडामेंटल रूल 53, आप देखिए मेरा फंडामेंटल रूल का डिफरेंट पार्ट्स है, इसको भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फंडामेंटल रूल 53। तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि सस्पेंशन पीरियड में आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। सस्पेंशन के पहले जो आपका बेसिक पे था उसका 50% आपको मिलेगा, ठीक है। 50% ऑफ बेसिक पे, 50% बेसिक पे, इसी के ऊपर आपको सभी मिलेगा, चाहे डेली अलाउंस है कि HR है, इसी के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो वही है, तो आंसर मिल गया आपको। तो जो रेट होगा वो 50% ऑफ बेसिक पे होगा। बेसिक पे मीन्स जस्ट बिफोर एक्चुअली सस्पेंशन, ओके। जो आपका बेसिक पे था उसका 50% आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। और रूल भी बताया फंडामेंटल 53, देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो उसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिए, क्लैरिफिकेशन है इसमें अबाउट सब्सिस्टेंस अलाउंस, ठीक है। तो उसको देख लीजिए। फॉर द फर्स्ट 3 months 50% ऑफ बेसिक पे, तो 50 जो सस्पेंशन के पहले जो बेसिक पे था उसका 50%, उसी के ऊपर आपको ये हो जाएगा 50% ऑफ बेसिक पे, इसी के ऊपर आपको जो भी मिलेगा, इसी के ऊपर DA मिलेगा, इसी के ऊपर HRA मिलेगा, ठीक है। तो आफ्टर 3 months यदि आपका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाता है बियॉन्ड 3 months, ठीक है, और ये जो बियॉन्ड 3 months है जो डिले हुआ ना, इट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉय। तो इसमें ये कंडीशन देखिए, आफ्टर 3 months जो आपका जो सस्पेंशन को एक्सटेंड कर दिया गया, तो आपके वजह से वो डिले नहीं हुआ, ठीक है, आपके वजह से वो डिले नहीं हुआ, तो उस केस में आपका जो सैलरी और 50%, क्योंकि पहले इसमें तो आपको 50% मिल रहा था, 50% ऑफ बेसिक पे, फिर इसका 50% फिर बढ़ जाए, इसी का 50% बढ़ जाएगा। तो 50% बढ़ जाएगा मीन्स कितना हो जाएगा, 75% ऑफ कितना मिलेगा, बेसिक पे। मगर इसमें एक कंडीशन है, ये जो डिले हुआ बियॉन्ड 3 months आपका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया, वो आपके वजह से नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जो फर्स्ट 3 months में जो 50% ऑफ बेसिक पे मिल रहा था, फिर उसका 50% इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है, यदि आपके वजह से डिले हुआ ड्यू टू द एम्प्लॉय एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड इज एक्सटेंडेड, आपके वजह से सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया गया, ठीक है। इसमें आपका जो आपके वजह से मीन्स क्या है, आप कुछ एविडेंस था, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, कि जो आपको इंक्वायरी ऑफिसर मांग रहा है आप नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। इस केस में आपके वजह से वो डिले हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, यहां पर जो 50% बेसिक पे मिल रहा था वो 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो 50% रिड्यूस हो जाएगा मीन्स कितना मिलेगा, 25% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं फंडामेंटल रूल 53 में, आप देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन डैश। मैं बताया था जो कौन सा ऐसा फंडामेंटल रूल में सब्सिस्टेंस अलाउंस को प्रिस्क्राइब किया गया है। यहां पर दिया है FR 53 है, FR 10 है, FR 54 है, FR 56 है। तो यहां पर जो आंसर होगा FR 53, क्योंकि FR 10 में आपको जो मेडिकल फिटनेस, ये मेडिकल फिटनेस है, ठीक है। ये 54 ये डिसमिसल रिमूवल कंपल्सरी रिटायरमेंट रिलेटेड है। सपोज आपको डिसमिस कर दिया गया, आपको रिमूव कर दिया गया कि कंपल्सरीली रिटायर्ड कर दिया गया, मगर अपील रिव्यू में फिर आप री इंस्टेट हो गए, ये FR 54 है। FR 56 वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, 56J में ये वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, ये सब ठीक है। फंडामेंटल रूल मेरा सिस्टमेटिक ऑर्डर में है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर जो सब्सिस्टेंस अलाउंस को डिफाइन किया गया है वो फंडामेंटल रूल 53 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। चलो यहां पर आप देख लीजिए, FR 52 में क्या है ना, जिस डेट में आपको ऑर्डर मिलेगा कि आपको डिसमिस कर दिया गया, कि रिमूव कर दिया गया, मेजर पेनल्टी आपके ऊपर लगा और आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। सपोज आज आपको ऑर्डर मिला,
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका पे एंड अलाउंसेस जो वो सीज हो जाएगा। सीज, ये देखिए अंडरलाइन कर, सीज फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल और रिमूवल, जिस डेट में आपको ऑर्डर मिला कि आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, कि रिमूव कर दिया गया, तो उसी से आपका पे एंड अलाउंसेस बंद हो गया। तो इसको कौन डिफाइन किया है? रूल पोजीशन को देखिए, FR 52। ठीक है, FR 53 तो बताया सस्पेंशन पीरियड में आपका पे क्या होगा। ठीक है, आपका पे जो है, जो मैं बताया था फर्स्ट 3 मंथ्स में 50% ऑफ बेसिक पे, जो सस्पेंशन के पहले जो बेसिक पे था उसका 50% मिलेगा, उसको हम सबसिस्टेंस अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, FR 53। FR 54 भी बोला था, जैसे अपील और रिव्यू में आपको डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया और कंपल्सरीली रिटायर्ड कर दिया गया, मगर आपका केस अभी आप अपील कर दिया कि उसको रिव्यू किया गया, फिर आपको री इंस्टेट कर दिया गया जॉब में, वो FR 54 है। तो उसमें जो बेसिकली सस्पेंशन पीरियड था और आप जो बेसिकली जो इंटरवेन पीरियड था जिसमें आप ऑलरेडी एब्सेंट हो गए क्योंकि आपको डिसमिस कर दिया गया, फिर आप अपील किए कि उसका रिव्यू हुआ, फिर कुछ दिन के बाद आपको रीइंस्टेट हुआ, जो एब्सेंस पीरियड, क्या वो ड्यूटी में माना जाएगा कि नहीं, ये सब FR 54। ये भी आप देख लीजिए, मेरा फंडामेंटल रूल का डिफरेंट पार्ट देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। FR 55 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल पोजीशन। आपको सस्पेंशन पीरियड में लीव नहीं दिया जाएगा, आपको लीव अथॉरिटी जो है आपको लीव नहीं देगा, वही है सस्पेंशन पीरियड में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि लीव मे नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रायर परमिशन और सैंक्शन इज नेसेसरी फॉर, किसमें आपको प्रायर परमिशन और सैंक्शन चाहिए? ज्वाइनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ऑफिस आवर्स, ज्वाइनिंग संयुक्त सदाचार समिति, अंडरटेकिंग सोशल और चैरिटेबल वर्क, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एज एमेचर। तो उसमें आप देख लीजिए, ये जो संयुक्त सदाचार समिति में आप ज्वाइन कर रहे हो, इसमें कोई प्रायर परमिशन और सैंक्शन का जरूरत नहीं है। ठीक है, सोशल चैरिटेबल वर्क में भी सैंक्शन और गवर्नमेंट का परमिशन और सैंक्शन, प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। कोई स्पोर्ट्स, आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इसमें कोई परमिशन और सैंक्शन का जरूरत नहीं है। तो ज्वाइनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ऑफिस आवर्स, प्रायर परमिशन और सैंक्शन नेसेसरी। मगर जनरली आप देख लीजिए, आपका कॉन्डक्ट रूल 15 देखिए, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। ठीक है, कॉन्डक्ट रूल 15 में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, बेसिकली आउटसाइड ऑफ ऑफिस आवर आप ऐसे जाकर कोई टेम्पररी हो कि पार्ट टाइम हो, आप नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। यदि गवर्नमेंट आपको परमिशन देता है, कि गवर्नमेंट सैंक्शन करता है कि आफ्टर ऑफिस आवर यू गो एंड इन्वॉल्व इन पार्ट टाइम जॉब इन बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तब हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट इस केस में गवर्नमेंट नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचता है कि आपका रिलैक्सेशन टाइम है, आप मीन्स आफ्टर ऑफिस आवर यू नीड सम रिलैक्सेशन, यू मस्ट बी मेंटली फिट वन, यू मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी वन। यदि आप जाकर फिर पार्ट टाइम जब कर रहे हो कहां पर, तो उसमें आपका इफिशियंसी रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है। मगर हाँ, बहुत रेयर केस में ये होता है कि यदि गवर्नमेंट परमिशन देता है और गवर्नमेंट सैंक्शन देता है, तब आउटसाइड ऑफिस आवर्स में आप जाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा सकते हो, कि आप ज्वाइन कर सकते हो पार्ट टाइम के लिए। ठीक है, पर अदर केस में जैसे संयुक्त सदाचार समिति है, कि कोई चैरिटेबल वर्क है, कि कोई सोशल वर्क है, कि आज प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन ऑफिस आवर के बाद थोड़ा आप कोचिंग दे रहे हो, तो ये सब सैंक्शन और परमिशन, गवर्नमेंट का सैंक्शन और परमिशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, और विदाउट परमिशन यदि आप आउटसाइड ऑफिस आवर्स जाके कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो, तो वो वायोलेट करते हो कंडक्ट रूल 15 को, तो वो मिसकंडक्ट माना जाएगा। ठीक है, और डिसिप्लिन प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। यदि गवर्नमेंट परमिशन देता है और सैंक्शन करता है, तब आप आउटसाइड ऑफ ऑफिस आवर ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द डैश गाइडलाइंस द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 इनैक्टेड। तो आप जानते हो कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ओके, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन
प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, आप याद रखिए। तो इसका किसका गाइडलाइन है? विशाखा है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन है, प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन है। तो ये आप देख लीजिए, ये जो आंसर है विशाखा गाइडलाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो उसको भी हम थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। यहां पर आप देख लीजिए 1992 ए रूरल लेवल चेंज एजेंट वनवारी देवी was engaged by the state of Rajasthan as a Sathin to work towards the prevention of the practice of child marriage। क्योंकि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज था, तो वहां पर राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वनवारी देवी को अपॉइंटमेंट किया साथिन के आकार में कि आप वर्क करो कि जैसे चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट किया जाएगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वर्क शी प्रिवेंटेड द मैरिज ऑफ ए 1 year old गर्ल इन द कम्युनिटी। ठीक है, वो एक 1 year old गर्ल, वो चाइल्ड मैरिज होता है, तो उसको वो अपोज किया। हर वर्क वॉज मेड विथ रिसेंटमेंट एंड अट्रैक्टेड हरासमेंट फ्रॉम मेन ऑफ द कम्युनिटी। तो ये वो जब इसको विरोध किया तब वो कुछ हरासमेंट फेस किया। सो सी हरास्ड बाय द मेन। ओके, तो वनवारी देवी रिपोर्टेड दिस टू द लोकल अथॉरिटी बट नो एक्शन वॉज टेकन। ठीक है, That omission came at great cost. Vanwari was subsequently gang raped by those very men. तो अल्टीमेटली वो लोकल अथॉरिटी को बताया कि जो चाइल्ड मैरिज है उसको मैं अपोज कर रहा हूं, तो मुझे हरास किया जाता है। ठीक है, तो लोकल अथॉरिटी कुछ नहीं कर पाया, अल्टीमेटली उसको गैंग रेप कर दिया गया। तो फिर मैटर क्या हुआ ना, ये जो वनवारी देवी का केस, उसको PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला। एक विशाखा, एक वोमेन ग्रुप है विशाखा, वो PIL डाला। ठीक है, एंड अदर वोमेन ग्रुप्स अगेंस्ट द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड यूनियन ऑफ इंडिया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी रिलेटेड में ये एक्ट आया, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 को इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो सभी वर्क प्लेस में देखिए, एंड दैट ऑल वर्क प्लेसेस एस्टेब्लिशमेंट्स इंस्टीट्यूशंस है। ओके, जो आपका बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन, एवरी वर्क प्लेस में, एवरी ऑफिस, एवरी डिपार्टमेंट में ठीक है एक सेल है। ठीक है, और जैसे जो वुमेन है उनको हरास, वुमेन एम्प्लॉइज है उनको हरास नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मैं आइडिया दे दिया आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट? यदि कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है कोई वर्क प्लेस में, तो कितना दिन के अंदर उसको कंप्लेन करना है? ठीक है, जो वोमेन एम्प्लॉय है उसको हरास किया गया, तो सपोज आज उसको हरास किया गया, जैसे मैं एक एग्जांपल, इमेजिनरी एग्जांपल है, जनवरी 21, 2025, तब कितना दिन के अंदर उसको कंप्लेन किया जाएगा? नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। आप याद रखिए, टाइम लिमिट है विद इन 3 months। ऑप्शन ए, विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट। जब इंसिडेंट होता है उसका 3 months के अंदर कंप्लेन करना है कि ये पर्टिकुलरली वुमेन एम्प्लॉय को हरास किया गया वर्क प्लेस में। ठीक है, विद इन 3 months। और बाकी यहां पर एक छोटा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसमें है यदि कंटिन्यूस विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट, तो आंसर है इन केस ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स होता है, एक इंसिडेंट के बाद एक इंसिडेंट होता रहता है, जो पर्टिकुलर वुमेन एम्प्लॉय है वर्क प्लेस में उसको हरास किया जाता है, तो इस केस में क्या जाएगा, माने सीरीज ऑफ इंसिडेंट। तो सीरीज ऑफ इंसिडेंट में याद रखिए, सीरीज ऑफ इंसिडेंट में जो लास्ट इंसिडेंट होगा, ठीक है, जो लास्ट इंसिडेंट होगा उसका 3 months के अंदर कंप्लेन करना है। 3 months ऑफ द लास्ट इंसिडेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, यदि सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑकर्ड और हैपेंड, जो लास्ट इंसिडेंट होगा उसका 3 months के अंदर कंप्लेन करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। वेदर LTC इज एडमिसेबल फॉर जर्नीज ड्यूरिंग वीकेंड हॉलीडेज विदाउट एनी लीव। सपोज एग्जांपल में देता हूं, सैटरडे एक पब्लिक हॉलीडे है, सैटरडे कोई पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और संडे भी तो हॉलीडे है। क्या इस तरीके का केस में आप ले सकते हो कि फिर मंडे भी हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक, क्या इस तरीके का हॉलीडे में आप LTC ले सकते हो? आपको याद रखना है
ये जो वीकेंड हॉलीडेज में आप नहीं ले सकते, आपको कोई लीव लेना है, एलटीसी लेना है, लीव ट्रैवल जो कंसेशन है आपको लेना है, मीन्स आपको लीव लेना है, चाहे सीएल लो, चाहे अर्न्ड लीव लो, ईएल लो, तो ओनली लीव पीरियड में आपको एलटीसी अवेल कर सकते हो। जो वीकेंड हॉलीडेज सब 3-4 दिन हो गया, संडे को इंक्लूड करके कोई पब्लिक हॉलीडेज लगातार हो गया, तो आप उसमें एलटीसी में चले जाओगे, वो आप नहीं होगा, ठीक है, आपको लीव लेना पड़ेगा। तो भाई वेदर एलटीसी इज एडमिसिबल फॉर जर्नीज ड्यूरिंग वीकेंड हॉलीडेज विदाउट एनी लीव, तो नॉट एडमिसिबल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिए, एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। एलटीसी के ऊपर तो मेरा वीडियो पड़ा है, आप देखिए, एमसीक्यूज है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, जो अप टू डेटेड वर्जन है। The LTC concession shall be admissible to persons if they have completed 1 year's continuous service under the central government, ठीक है, 1 year continuous service के बाद ही आप LTC ले सकते हो। The leave travel concession shall be admissible during any period of leave, आप कोई भी लीव लो, उसी लीव पीरियड में आप LTC ले सकते हो। आप बोले कोई वीकेंड हॉलीडेज है, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलीडेज है, तो फ्राइडे सैटरडे हॉलीडेज है और संडे तो ऐसे हॉलीडे है, तो उसमें मैं LTC ले जाऊंगा, तो वीकेंड हॉलीडेज में आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो वही दे दिया, कैन नॉट बी अवेल्ड ऑफ ड्यूरिंग क्लोजिंग हॉलीडेज ओनली विदाउट टेकिंग एनी लीव, तो आपको लीव लेना पड़ेगा, कोई ना कोई लीव लेकर आपको एलटीसी अवेल करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स टू क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर एलटीसी व्हेन नो एडवांस इज डन। आप एलटीसी के लिए एडवांस नहीं लिया है, तो एलटीसी के लिए एडवांस नहीं लिया है, तो आप कितना दिन के अंदर आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा, ठीक है। रीइंबर्समेंट मींस आपका जो बिल फिल है आप सबमिट करोगे रीइंबर्समेंट के लिए, तो आपको याद रखना है, नो एडवांस मींस आपको विद इन 3 मंथ्स आपको क्लेम करना है, ओके, विद इन 3 मंथ्स आपको रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम करना है। यदि एडवांस लिया है, यदि आप एडवांस लिया है, देन क्लेम करना है विद इन 1 मंथ, ठीक है। तो इसको याद रखिए, तो यहां पर तो आपको आंसर मिल गया। तो व्हेन नो एडवांस इज ड्रॉन नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यदि आप एडवांस नहीं लिया है और आप एलटीसी अवेल किया, तो इस केस में आप जो क्लेम करोगे रीइंबर्समेंट के लिए, सपोज आपका रिटर्न जर्नी खत्म हो गया, ठीक है, आज खत्म हो गया, ठीक है, आप ज्वाइन कर लिए, तो आपका रिटर्न जर्नी आज खत्म है, आप ज्वाइन कर लिए, तो नेक्स्ट डे से आप काउंट करोगे, तो वो 3 मंथ्स के अंदर आपको आपका जो क्लेम है आप क्लेम करोगे रीइंबर्समेंट के लिए। यदि एडवांस लिया है, आपका रिटर्न जर्नी खत्म हो गया, आप ज्वाइन कर लिए, तो उसका 1 मंथ के अंदर आपको क्लेम करना है रीइंबर्समेंट के लिए, ठीक है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये दिया है, देखिए, Which item will not come under the purview of definition of goods, ये GFR। तो GFR का GFR 143 रूल पोजीशन आप देखिए 143 में, तो क्या गुड्स में काउंट होगा, क्या गुड्स में काउंट होगा, क्या गुड्स में काउंट नहीं होगा, वो क्लियरली दिया है। तो उसमें दिया है इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर, पैटेंट्स, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, शिप्स, बुक्स, पब्लिकेशन, पीरियडिकल्स, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स। आपको याद रखना है, गुड्स में आंसर इज बिट सी, बुक्स, पब्लिकेशन, पीरियडिकल्स, ये गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब होगा। आप GFR 143 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियडिकल्स गुड्स में इंक्लूड नहीं होता है, GFR 143 में है, बाकी जो भी है सब इंक्लूड होगा। उसको थोड़ा हम क्लैरिफाई कर देंगे। डेफिनेशन ऑफ गुड्स देखिए, अंडर रूल 143 गुड्स इंक्लूड ऑल आर्टिकल्स। अब देखिए, गुड्स इंक्लूड ऑल आर्टिकल्स, कमोडिटी, लाइवस्टॉक, फर्नीचर, रॉ मटेरियल्स, स्पेयर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स एटसेट्रा, और इंटेंजिबल लाइक सर्विसेज, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसेस, पैटेंट्स और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज परचेज्ड और एक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ गवर्नमेंट, ये सब इंक्लूड होता है गुड्स में, बट एक्सक्लूड्स बुक्स, पीरियडिकल्स, पब्लिकेशंस, ये सब फॉर ए लाइब्रेरी। ये जो लाइब्रेरी के लिए जो बुक्स है, पब्लिकेशन से, पीरियडिकल्स एटसेट्रा,
ये इंक्लूड गुड्स में नहीं होता है, ठीक है। और गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल्सो इंक्लूड्स वर्क्स एंड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, ये सब गुड्स में इंक्लूड होता है। ओनली आपको ये चीज को ध्यान देना है, ओनली लाइब्रेरी के लिए जो बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स है वो गुड्स में इंक्लूड नहीं होता है। तो जीएफआर रूल 143, ठीक है, डिफाइन किया है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इन केस ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट, केयर और शुड ऑल्सो बी टेकन टू अवॉइड परचेजिंग क्वांटिटीज इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट टू अवॉइड। अच्छा, आपको यार जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट हम जो प्रोक्योर करते हैं, हमको एक्सेस क्वांटिटी को प्रोक्योर नहीं करना है। जो डिपार्टमेंट को नीड है, ऑफिस को जितना नीड है उतना ही आपको प्रोक्योर करना है। एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा ना, उसको फिर हम गोडाउन में रखेंगे, उसमें कैरिंग कॉस्ट लगेगा, है कि नहीं। तो यहां पर ऑप्शन दिया है, केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू अवॉइड परचेजिंग क्वांटिटीज इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू अवॉइड डैश ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सरप्लस कॉस्ट। तो इसमें जो आंसर होगा बिट बी है। आप रूल जीएफआर 144 देखिए, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इसमें क्लियरली मेंशन है, इसको भी याद रखिए रूल पोजीशन को। इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप डिपार्टमेंट को जितना गुड प्रोक्योर करना चाहिए उतना ही होगा, करना चाहिए, करेगा। एक्सेस करेगा तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा कि उसको हम गोडाउन में रखेंगे, उसमें फिर उसका मेंटेनेंस लगेगा, ठीक है। तो इसको कैरिंग, जो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए हमको जितना डिपार्टमेंट को हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड इज रिक्वायर्ड दैट मच ऑफ गुड्स मस्ट बी प्रोक्योर्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये रूल जीएफआर 144 जो रिलेटेड टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसमें क्लियरली मेंशन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलटीसी एडवांस ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। कितना मैक्सिमम एलटीसी एडवांस मिलेगा आपको। अभी देखिए, जो इसमें अपडेटेड वर्जन आया था अमेंडमेंट अप्रैल 30, 2024 में, पहले तो 90% था, जो एस्टिमेटेड आप एस्टिमेशन दे रहे हो उसका 90% आपको एडवांस मिल रहा था, मगर अभी 4/5 कर दिया, 4/5 ऑफ द एस्टिमेटेड फेयर। 4/5 मीन्स 80%। आप कैलकुलेट करके देखिए, तो कंफ्यूजन मत होइए। तो इसका आप देख लीजिए, अमेंडमेंट ऑर्डर देख लीजिए, अप्रैल 30, 2024, इसमें क्लियरली मेंशन है। पहले तो आपका एस्टिमेटेड फेयर का 90% मिल रहा था एडवांस, मगर अभी एस्टिमेटेड फेयर का 4/5 मीन्स 80% मिलेगा एडवांस, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये नहीं है, ये जो आंसर में लिख दिया ये आंसर गलत है, ये यहां पर हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू। अगेन सीएसएमए रूल्स, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 में हम ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। हिज हेडक्वार्टर्स, द प्लेस एट व्हिच ही फॉल्स इल, द प्लेस ऑफ हिज परमानेंट रेसिडेंस, नन ऑफ द अबव। तो हम जो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट का, उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्या उसका हेडक्वार्टर में के हिसाब से करेंगे, जहां पर है वो अभी काम कर रहा है, क्या जिस प्लेस में वो इल हुआ, कि उसका जो परमानेंट रेसिडेंस है, ना नॉन ऑफ द अबव। आपको याद रखना है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिस प्लेस में ओके वो सपोज सफरिंग इन एनी टाइप ऑफ इलनेस, उसी प्लेस में एक्चुअली उसका ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट को डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को चलेंगे। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, हिज फैमिली में ट्रैवल टू द न्यू स्टेशन। तो इसमें दिया है यदि आपका ट्रांसफर होता है तो पब्लिक इंटरेस्ट में, ट्रांसफर मीन सपोज इसमें हम मान लेंगे पब्लिक इंटरेस्ट में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। यदि पब्लिक इंटरेस्ट में आपका ट्रांसफर होता है तो आपका फैमिली ट्रांसफर का कितना दिन के अंदर वो ट्रैवल कर सकता है। हिज फैमिली में ट्रैवल टू द न्यू स्टेशन डैश within 6 months after the transfer, within 1 month before the transfer, क्या at any time after transfer,
आइदर ए और बी। आप याद रखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कॉमन हम जनरली जानते हैं कि जब आपका ट्रांसफर हुआ, आपको ट्रांसफर ऑर्डर मिला, तो उसका 6 मंथ्स के अंदर आपका फैमिली ट्रैवल करना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा नहीं। 6 मंथ से ज्यादा हो जाएगा तो आप क्लेम करेंगे तो रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो आप देखिए जब आपका ट्रांसफर हुआ तो विद इन 6 मंथ्स आपका फैमिली ट्रैवल करेगा। नहीं तो और एक ऑप्शन है 1 मंथ बिफोर द ट्रांसफर, माने इट मीन्स विद इन 1 मंथ बिफोर द ट्रांसफर। ये दोनों एक्चुअली आइदर और, ये दोनों आइदर और। यदि बाद में देखेंगे ट्रांसफर के बाद विद इन 6 मंथ्स योर फैमिली शुड ट्रैवल, अदरवाइज बिफोर देखेंगे विद इन 1 मंथ बिफोर द ट्रांसफर, विद इन 6 मंथ्स आफ्टर ये, और आप जो भी मान लीजिए। बेसिकली हमारे माइंड में आता है कि हम ये कॉमन जानते हैं कि विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द ट्रांसफर, जब आप ट्रांसफर होता है विद इन 6 मंथ्स हमारा फैमिली ट्रैवल करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी मत भूलिए कि विद इन 1 मंथ बिफोर द ट्रांसफर आपका फैमिली भी शिफ्ट हो सकता है न्यू स्टेशन को। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, above ₹50,000 and up to ₹10 lakh through the GEM seller, GEM को आ जाए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, having lowest price amongst the available sellers of dash different manufacturers। इसमें दिया है at least 2, at least 3, at least 4, at least 5। यदि आप जो वैल्यू ऑफ गुड्स को जेम से प्रोक्योर करना चाहते हो, उसका वैल्यू है अबव ₹50,000 एंड अप टू 10 लाख, तो एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर्स जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स है जेम पोर्टल में, उनको लेना है और कंपेयर करना है स्पेसिफिकेशंस को, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को, उनका जो डिलीवरी टाइम है, इसको सब चेक करना है, कंपेयर करना है, और जो लिस्ट होगा, जिसका प्राइस लिस्ट होगा, उसी को ऑर्डर करना है। ठीक है कि नहीं? तो कॉस्ट ये लिमिट भी देख लीजिए। तो यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी अमेंडमेंट के बाद अभी जेम पोर्टल आप थोड़ा देख लीजिए। अभी आप डायरेक्ट परचेज का अप टू ₹50,000 आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। पहले अप टू ₹25,000 था, अभी अप टू ₹50,000 डायरेक्ट आप कोई भी सप्लायर से, जो जेम के ऊपर है, कोई भी सप्लायर से आप खरीद सकते हो। मगर ये आ जाएगा अबव ₹50,000 एंड अप टू 10 लाख, इतना वैल्यू ऑफ गुड्स आप प्रोक्योर करना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को लेना है, उनको कंपेयर करना है, उनका स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी पीरियड, ये सब कंपेयर करना है। जिसका प्राइस लिस्ट होगा उसी को ऑर्डर दे देना है। और अबव ₹10 लाख तो ये ऑनलाइन बिडिंग में जाइए, नहीं तो रिवर्स ऑक्शन टूल में जाइए। तो ये अमेंडमेंट हुआ है अभी, ये अमेंडमेंट ये को लीजिए, कंफ्यूजन मत होइए। तो अबव ₹10 लाख ऑनलाइन बिडिंग में जाइए और रिवर्स ऑक्शन में जाइए। और यदि अप टू 50,000 आप कोई भी सप्लायर से खरीद सकते हो डायरेक्टली, डायरेक्ट परचेज, इसको डायरेक्ट परचेज बोलते हैं, इसको ठीक है डायरेक्ट परचेज बोलते हैं अप टू 50,000। मगर अबव 50,000 अप टू 10 लाख आपको एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर्स को जाना है और उनका कंपेयर करना है, और जिसका प्राइस लिस्ट होगा उसी को ही ऑर्डर दे देना है। और अबव ₹10 लाख आप ऑनलाइन बिडिंग में जाना है और रिवर्स ऑक्शन टूल को जाना है। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इजी है। व्हेन डिड द फंडामेंटल रूल्स कम इनटू फोर्स टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स? तो ये बहुत इजी है, आप जानते हो फंडामेंटल रूल्स 1922 ना, तो 1 जनवरी 1922, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1 जनवरी 1922 ओके, फंडामेंटल रूल केम इनटू फोर्स। इस जो मेरा सुपर 15 MCQ है फंडामेंटल रूल के ऊपर, उसमें भी मैं डिस्कस किया था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, फॉरेन सर्विस रिलेटेड है। फॉरेन सर्विस मींस सर्विस इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो आप यदि फॉरेन सर्विस में जाते हो, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, कोई प्राइवेट बॉडी, कोई सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप फॉरेन सर्विस में टेम्पररी पीरियड के लिए जा रहे हो, तो आपका तो पे को गवर्नमेंट अलाउ करेगा, पे तो गवर्नमेंट अलाउ करेगा, मगर
कहां से मिलेगा आपको? तो आपको याद रखना है, फॉरेन सर्विस में आपका जो पे मिलता है अदर देन कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है। इसको याद रखिए, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है आपका सैलरी, कंसोलिडेटेड फंड से, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड। बेसिकली हमको कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है, सैलरी मिलता है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। मगर जब आप फॉरेन सर्विस में जाओगे, आपका पे तो गवर्नमेंट एक्चुअली अलाउ करेगा, अप्रूव करेगा, मगर आपको अदर देन कंसोलिडेटेड फंड से आपको सैलरी मिलेगा। तो वही दे दिया, फ्रॉम डैश कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, नो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, नो, एनी सोर्स अदर देन द अबव। ठीक है, तो मैं आपको बताया, यदि फॉरेन सर्विस में आप जा रहे हो, आपका पे तो अलाउ करेगा गवर्नमेंट, मगर आपको जो पे मिलेगा वो कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिलेगा। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ गवर्नमेंट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, उससे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो आज ये 20 क्वेश्चंस था एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का। अभी मैं कंटिन्यू करूंगा ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स का डिमांड है कि सर आप वो जंबल करके जो आप कुछ क्वेश्चंस लाइए, तब डिफरेंट रूल्स के ऊपर, तब हमको एटलीस्ट आइडिया होगा कि अभी जो नियर फ्यूचर में जो एग्जाम है, तो हमारा एग्जाम अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये सीरीज लाया, ये फास्ट सीरीज था। ठीक है, तो आज इतना ही है। थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, बट यू डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and my YouTube channel name also Asit Comment Rule Guru and my Facebook page also Asit Comment Rule Guru। तो प्लीज मेरा फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए, उसमें आपको वीडियो मिलेगा और बाकी आपका वीडियो लिंक भी मिलेगा सिस्टमेटिक ऑर्डर से। तो आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।